depicting the Ramayana on wheelchairs, enacting Krishna Leelas on wheelchairs, a Shiv Tandav on wheelchairs. Do you think you'll ever see all this? Most definitely. There is a differently abled group called We Are One, or WOW as they call themselves, who make all this possible. It is a group that produces Bharatnatyam dance dramas. If there's one word for their dance dramas, it has got to be awesome, because they leave you in complete awe, spinning in their wheelchair with brilliant dance formations and creativity out of the box. Husnain Sir from New Delhi, affected by polio in both his legs, is the spearhead of WOW. He and his team have showcased their talent in front of eminent personalities like Sri Pranab Mukherjee, Mr. APJ Abdul Kalam, the Singapore President Halima Yaqub, and in noted foreign destinations like the House of Commons in United Kingdom, USA, Russia, Dubai, and so many more. Husnain Sir works relentlessly in his community to bring about their talent to the world and encourage the world to see their capabilities beyond their incapabilities. I was lucky to connect with him, to know his story and understand his vision. So let's dive into the conversation right away. Welcome, sir, on my show. I'm so happy to have you, and I must say you were very prompt, and I'm glad that you've come out to support this. We've seen you on stage. You've performed all over the country, but just to understand who is this person behind all that get up, that's the whole idea of this chat that we are going to have. And when you and your troupe come, when you and your team are coming to perform, what should we expect? Hi Shanti, this is the only organization in India who do Indian, especially wheelchair classical dance. I am an orthopedic disabled person, right? But I am working in this line past 2 decades. Wow. And professionally, I am working in this line past 9 years. Behind me, there is one school. The school name is Amar Jyoti Charitable Trust School, where I took my study from C to 8th standard. And through this school, I got the opportunity to perform in USA, UK, Canada. So I started dancing when I was just only, you can say, I was in 3rd and 4th standard. तो एक बार हमारे स्कूल में बच्चों के स्कूल में एक फंक्शन हुआ था हमारा, तो मैंने स्कूल में देखा कि सारे बच्चे हैं जो मेरे जैसे ही थे. This was an inclusive school with disability, without disability people are performing together. Okay. तो मैंने वहाँ पे देखा कि व्हीलचेयर यूजर वहाँ पे परफॉर्म कर रहे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता. वहाँ पे क्या होता था, हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है जैसे स्कूल में होता है. तो वहाँ पे उस स्कूल में हर बार एक नए गुरु आते. तो हमने जब वहाँ पे पहली बार परफॉर्मेंस करा, तो एक पहली मैम जिनका नाम नीलम है, वो आज भी मुझसे जुड़े हुए और उनको बहुत गर्व होता है कि वी आर डूइंग द परफॉर्मेंस. तो मैम ने बोला कि आप व्हीलचेयर बैठ सकते हो. मैंने कहा ये साइकिल से काम में व्हीलचेयर, बिकॉज मैं कैलिपर पैसे से चलता था उस टाइम पे. तो उसके बाद मैम ने मुझे व्हीलचेयर पे बिठाला, और व्हीलचेयर पे बिठाने के बाद बोला 2 रिबन्स दिए. मैंने बोला इसको जस्ट वेव करो. वेव कर रहे थे 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से कर रहे थे. तो वहां से जो इंटरेस्ट, वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है ट्रैवलिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो बहुत पसंद आया. सबसे पहली परफॉर्मेंस 2003 में मैंने गई तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे शशि कपूर जी आए थे परफॉर्मेंस देखने के लिए. ओके, वाओ. उनको पहली बार देखा था क्योंकि टीवी पे देखा था, उनको लाइव आपने देखा, और वो बहुत दूर थे. मैं आपको पर्सनली बोलूँ, वो बहुत ज्यादा दूर थे, बट एक क्यूरियोसिटी थी कि हमने एक टीवी वाले पर्सन को यहाँ पे देखा. आज वो चीज बहुत कम हो गई, बट उस टाइम पे बहुत थी. तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई डांसिंग. तो वो पहली परफॉर्मेंस मैंने करी, फिर मैम हमें इन्वाइट करती रही. फिर हमने हमारी जो व्हीलचेयर है वो 4 व्हील्स की होती है, आपने देखा होगा, छोटे 2 व्हील्स आगे होते हैं, बड़े 2 व्हील्स पीछे होते हैं. तो हमारी जो व्हीलचेयर्स है, व्हीलचेयर्स को मैंने देखा कि वहां पे जो लोग मेरे स्कूल में थे, वो उसी व्हीलचेयर को ना आगे वाले पहियों को हवा में करके उसको स्पिन करते थे. एनुअल स्पिन करते थे वो हमने देखा, तो हमने सोचा यार इट्स अ मैजिक. तो वहाँ पे कालिया का मैंने परफॉर्मेंस हुआ था, बहुत सुंदर प्रॉप बना था उनका. तो उनका प्रॉप था, वो स्पिनिंग करी उन्होंने. तो जो स्पिनिंग करेगा, वी गॉट टोटली मेस्मराइज्ड यार, व्हाट ही डिड यार, कंप्लीटली मेस्मराइज्ड. क्योंकि उस समय सोच लेता कि यार हमें सीखना है. तो जब मैंने व्हीलचेयर उठाई, हमें लगा ये बहुत आसान होगा, वी कैन डू इट इजीली.
1 महीना हो गया हमसे व्हीलचेयर ही नहीं उठी। Oh no. क्यों? दिल में डर था कि हम जोर पे उठाएंगे तो वी कैन फॉल डाउन। Right. तो जिन्होंने वो काली दमन का परफॉर्मेंस करा था तो उन्होंने कहा बेटा अगर तू ये व्हीलचेयर को जोर की नहीं उठाएगा और तेरे सर में जब तक चोट नहीं लगेगी तू नहीं सीख सकता। इट इज इम्पॉसिबल। मैं सच बता रहा हूँ, 3 महीने के बाद जब वो डर बैठ गया मन में, डर तो हो ही गया, लेट्स डू इट, करते हैं। जब मैंने वो व्हीलचेयर उठाई और मैं गिरा हूँ, यकीन मानिए वो सरफेस, स्टेज का सरफेस आपको पता है पूरा हार्ड टेस्ट सरफेस था। मैं बैठ गया बिल्कुल वहीं पे, 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल शांत हो गए। मैंने उस टाइम पे स्टेइंग नहीं करी, 1 हफ्ता मैंने व्हीलचेयर को भी टच नहीं करा। डर के बारे में गया ही नहीं कि यार नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे से, मैं टूट गया उस टाइम पे। मैम जो नीलम मैम को मैंने जिक्र करा, मैम ने मोटिवेट करा, कहते हैं टीचर मोटिवेट होता है वो। मैम ने मुझे मोटिवेट करा कि करो, और यकीन मानिए मैं व्हीलचेयर में बैठा और मैंने स्पिनिंग कर ली वहां पे। तो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट, जब भगवान ने आपको आर्टिस्ट बनाने के लिए पैदा करा है तो आप तो चाहे जितनी परेशानी आ जाए आप करोगे। Right. I'd like to ask you one thing. You said that your school really supported you, and that's where you got courage, your teachers and all. Same thing. But अभी स्कूल में आई एम श्योर कि आपको कई सारे दूसरे भी होंगे, स्पोर्ट्स होंगे या कई और एक्टिविटीज होंगे, तो आपने भरतनाट्यम ही क्यों चूज किया? दैट इज माई क्यूरियोसिटी। एट द टाइम मैं भरतनाट्यम नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में ना लोग भरतनाट्यम नहीं करते थे, डांस प्रोडक्शंस करते थे, कि उसका भी एक परफॉर्मेंस था जैसे कालिया दमन। इट्स नॉट अ डांस परफॉर्मेंस, इट्स अ प्रोडक्शन। ओके। जिसमें कृष्ण का वो जो बाल कृष्ण गोपाल थे उनका पूरी स्टोरी दिखाया जाता है कि उन्होंने अपने मुंह में पृथ्वी दिखाई थी तो बॉल जो थी वो गिर गई थी। इट्स अ प्रोडक्शन काइंड ऑफ, वो डांस नहीं था। डांस ड्रामा पे भरतनाट्यम, हाँ डांस ड्रामा आप कह सकते हैं। दैट टाइम वी वर डूइंग द डांस ड्रामा। तो 2004 में जिस गुरु ने, जिनका नाम था डॉक्टर मिस्टर पाशा, तो उन्होंने हमारे को ट्रेन करा प्रोडक्शन के लिए दुर्गा और वीर सब मार्शल आर्ट को। तो उनका कोरियोग्राफी लेवल जो था वो बहुत ही पावरफुल था। मतलब आप ये सोच लीजिए कि ही इज आल्सो ट्रेन्ड प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर, डिस्पाइल ऑफ डॉक्टर माया राव फ्रॉम बेंगलुरु, कर्नाटका। यस, so he took the training from that place and trained us at the time of Indian classical dance. Okay. Not you can say Bharatanatyam, he trained us in Indian classical dance. Okay. अब तक अभी हम भरतनाट्यम पे नहीं पहुंचे थे। तो फिर हम उनके साथ एसोसिएट हुए, हमने प्रोडक्शन करा 2006 में अमर ज्योति स्कूल के अंदर। जैसा आपने मुझे बताया कि 2005 में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी काफी सारे होते थे, बट उस टाइम पे डांस बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब वो लेवल बहुत कम हो गया है डांसिंग का, कि इंडियन क्लासिकल डांस एक कहते हैं ना अभी बैनिश होने वाली चीज हो गई, तो वो कहीं ना कहीं हो गया। बट स्पोर्ट्स कैटेगरी आज के टाइम में बहुत अच्छी चल रही है। आप क्रिकेट को देख लीजिए, हॉकी को देख लीजिए, वुमेन्स क्रिकेट टीम को देख लीजिए, दे आर डूइंग गुड। तो उस टाइम पे भी था क्रेज, बट आज का क्रेज आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत इन्फ्लुएंसर हो गया। तो डांस इसीलिए चूज करा उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे एक लेगेसी चल रही थी डांस, आप कह सकते हैं इस चीज को। तो वो लेगेसी चल रही थी डांस की, और एक ऊपर वाले का आशीर्वाद भी था मेरे पर, जो हमने शुरू कर दी। 2006 में एक बड़ा प्रोडक्शन आया हमारे पास में, रामायण ऑन व्हील्स का। तो आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ रामायण। तो वो राम का कैरेक्टर जब मैंने करा ना, उस कैरेक्टर को करने के बाद में जो ऑडियंस, वो हमने राम का कैरेक्टर करा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, कनाडा के अंदर। तो ये 3 कंट्रीज में, जब आप ऐसी कंट्रीज में जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो रिलीजियस को थोड़ा कम मानती हैं, बट द थिंग व्हाइल दे आर सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, भागवत गीता, तो उसको अवतार को देखने के बाद जब राम के अवतार को, लॉर्ड विष्णु के राम अवतार को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि जो रामचरित्र मानस जो रामायण लिखी जिन्होंने, तो जो सारांश वो देख रहे थे, जैसे पंचवटी आया है ना, और क्या ना कि रावण का दहन हुआ, और क्या ना कि आपने जटायु से जब बात करी, और जब आपने जब सीता को बताया कि हमें वनवास जाना होगा, वो जो एंटायर कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा पंचवटी का, वो देखने के बाद वो मेस्मराइज्ड हो गए। वो ये भूल गए कि they are seeing the performance of the differently abled person, they were not seeing our disability, they were seeing just our abilities. और ये पावरफुल मोमेंट भी था मेरे लिए। तो I'm pretty sure you've answered this question in our conversation already, but I would like to know that वो एक टाइम जो था, मे बी एक परफॉर्मेंस होगा या एक कोई सिटी होगी, when you decided that this is my career,
यस, एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरी फैमिली ने ये बोला कि अब आप डांस नहीं करोगे बिकॉज यू आर द मुस्लिम पर्सन। मैं यूएस गया था, दे वर हैप्पी बट दे आर सेइंग कि अभी चलो ठीक है, बच्चा है। मैं आई वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड, तो बच्चा है, करेगा, ठीक है, चलो हट जाएगा, 2 साल का क्रेज खत्म हो जाएगा। क्रेज खत्म नहीं हो रहा था। आई वॉज गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज कि मुझे नेशनली भी अलग अलग इंटरनेशनली नेशनली फोरम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एंड आई वॉज परफॉर्मिंग। तो मैंने बताया ना, जो 4 साल मेरे थे जहाँ पे मैं भरतनाट्यम डांस सीख रहा था, उसमें प्रोडक्शन करता था। तो रामायण हो गया, दुर्गा हो गया, महाभारत हो गया, कल की अवतार हो गया, इस तरीके से हम सब को प्रोडक्शन करते रहते थे हम लोग। तो मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि आई एम द मुस्लिम पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड आई हैव दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी किसी डिसेबल्ड पर्सन को डांसिंग करते हुए नहीं देखा था इंस्टेड ऑफ माय स्कूल। जो मेरा स्कूल था, उसके स्कूल के अलावा कभी किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने कहा क्या कैरियर है, कहते आप स्टडी करो, पढ़ाई करो, नहीं तो फिर आप थोड़े वक्त के बाद में जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आप एक परचून की दुकान के अलावा शायद क्यों चला पाओगे, नहीं तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज से पहले एक हैंडीकैप बच्चा गवर्नमेंट जॉब ही करता था या फिर कोई परचून की दुकान ओपन कर ली। तो वो बोलते थे मेरे पेरेंट्स। बट कि मुझे बुरा लगता था कि यार कि मैं अच्छा डांसर हूँ तो क्यों ना करूँ मैं इसको। मैं पेरेंट्स को बोलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं बैग में अपने कपड़े हाइड करता था, स्कूल के ड्रेस पहनता था, चला जाता था। और वहां जाके टॉयलेट में, जैसे मॉल्स वगैरह के टॉयलेट में जाके कपड़े चेंज करके हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए आ जाते थे। प्रैक्टिस करके परफॉर्मेंस के लिए चले जाते थे दिल्ली के अंदर। आउट ऑफ स्टेशन के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता था, पापा के स्कूल का प्रोजेक्ट आया है, उसके 2 दिन के लिए बाहर जाना है हमें, तो हम जाते थे इस तरीके से। जो एक टाइम पे मेरे पेरेंट्स को ये पता चल गया अच्छा बंक मार रहा, क्योंकि टेस्ट छोटे, मैं इंग्लिश में फेल हुआ 10th स्टैंडर्ड के अंदर। 11th में यकीन मानना, मैंने अपनी पूरी लाइफ को स्टडी में ही वो कर दिया। और उसके बाद से मैंने 11th क्लास की जो इलेक्टिव इंग्लिश थी और एक कोर इंग्लिश थी, तो कोर इंग्लिश ए वाली होती थी, इलेक्टिव इंग्लिश बी वाली होती थी। तो मैंने बी वाली इलेक्टिव इंग्लिश ली। एक इलेक्टिव एग्जाम होता है, दोबारा से होता है, सबटाइटल एग्जाम होता है। मैंने 10th का दोबारा से इंग्लिश एग्जाम दिया एंड आई गॉट द 88%, 88 नंबर आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश 10th में, 1 सेकेंड। तो पापा खुश हुए। पापा ने बोला ठीक है बेटा, अभी जो करना है करो थोड़ा सा। तो 2013 में मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन करा, डांसिंग इंस्टीट्यूट, लाइफ सक्सेस, जिंदगी की सफलता। मैं उन्हीं बच्चों को लूंगा जो बच्चे डिफरेंटली एबल। ओके। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मेरे साथ वो शोषण हुआ कि लोगों को दिखाया, कंप्यूटर पे बिठा दिया हमारे को और ग्रांट्स ले ली, उसके बाद ना वो बच्चे सिखा रहे हैं, ना पढ़ा रहे हैं, ना डांस सिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाव रहता था। क्योंकि आज आप देखेंगे 15 साल पहले, तो जो अकाउंट में पैसे जाता था वो एक एनजीओ के पास में जाता था। वो आपने काफी सारे इनिशिएटिव देखे होंगे कि डिसेबल्ड बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू, वो नहीं होता था। उस टाइम पे कोई भी एनजीओ के ऐसे 5 बच्चे आप सेट करा के देखिए जिन्होंने एक अच्छी सक्सेस आज तक पाई होगी। देयर इज नो वन। पूरा का पूरा पैसा उनकी पॉकेट में जाता था। जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे को प्रमोट करती थी, परफॉर्मेंस के लिए लेके जाती थी, दे आर जस्ट ओनली गिविंग 500 रुपीज, 750 रुपीज प्लस ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स इट। तो वो कहीं ना कहीं दिल में एक पिच होती थी कि यार आप 2 लाख रुपए ले रहे हो, 2.5 लाख रुपए ले रहे हो उस टाइम पे, और आप दे रहे हो 1000 रुपीज, 750 रुपीज, विच इज नॉट गुड। 1 साल तक ही रन कर पाया, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो डांस परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी होती है वो अच्छे लेवल पे मैं नहीं कर पाया। मैं लोगों तक वो अपनी बात नहीं करवा पाया, पिच नहीं करवा पाया। मैं टूट गया पूरी तरीके से। और मैंने थोड़ा पैसा इकट्ठा करा, तो 3 साल मैंने अपने आप को दिए शादी में। 3 साल 2016 मैंने, जो लोग मेरे साथ में डांस परफॉर्मेंसेस करते थे, जो फ्रीलांसर थे, जो डिसेबल्ड बच्चे थे, वी आर वन, वी ऑल आर वन। वी वांट टू गिव द मैसेज टू सोसाइटी कि वी ऑल आर सिमिलर। प्लीज हमें अपॉर्चुनिटी, मर्सी की नजर से मत देखो, अपॉर्चुनिटी की नजर से देखो, अपने कंधे से कंधा मिला के देखो। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरा मोटिव है, ये मेरा पर्पस है। यू सेड कि आपने आपके जो बचपन के दोस्त थे सबको बुलाया, एंड Yes. was that conversation easy? Was it easy for you to convince them कि ये organization में जितना आपको इतना you had a vision and Yes. you wanted to do it, but did they also have the same kind of conviction? Was it easy to convince them to come on board? फिर उन लोग आ गए, like your core team of 9 people have come. फिर उसके बाद आप जैसे बोल रहे हो कई सारे और बच्चे लोग आते हैं. So how easy is it to bring these people on your team? Do you have to deal with family members, unke questions?
सी जब कि मैंने 2016 में जून जुलाई में जब मैंने मीटिंग किया, इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि कहना कि मैं 2016 में पास हो चुका था। दोबारा से किसी और की पिच करते हो यार, तूने वहां पे भी शुरू किया था, वो फ्लॉप हो गया, अब क्या? अब दोबारा से कर रहा है तू सोच, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे तो मुझे अच्छा भी गाइड कर रहे थे कि यार छोड़ना, लेट्स डू द जॉब। मैंने कहा नहीं था, कम खाएंगे बट लेट्स डू इट टुगेदर, साथ में करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि वी कैन डू इट। तो उस टाइम पे फैमिली वालों से ऐसी बात इसलिए नहीं करी बिकॉज दे ऑल वर मैच्योर एट द टाइम। वो सभी बच्चे 18, 19, 20 साल के थे उस टाइम पे, सब बड़े भी हो गए थे, सब बड़े बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। बट हाँ, ये था कि जो मेरा 4 महीने का पीरियड था, 4 से 5 महीने का, वहां पे माइंड में कभी नेगेटिव, क्योंकि फैमिली भी बोल रही थी कि बेटा छोड़ दे, एक बार फ्लॉप हुआ है, दोबारा से पैसा लगाना सही नहीं है। और हैंडीकैप पर्सन की लाइफ ज्यादा नहीं होती क्योंकि वो चल ज्यादा नहीं पाते। 45 साल के बाद आपको चलने में, उठने में, बैठने में थोड़ा ना कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएंगी बिकॉज आपके दोनों पैरों में प्रॉब्लम। तो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5-4 महीने जो थे ना, ये मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव करते रहे। तो कहते नहीं कि एक इशारा मिल जाता है आपको। तो जब मैंने शुरू करा तो जो स्कूल था मेरा, जिसके बारे में मैंने बताया आपको, इस स्कूल से मुझे सपोर्ट मिला। मुझे वहां से 8 व्हीलचेयर्स प्लस डोनेशन में जो 1,90,000 रुपीज का डोनेशन मिला मुझे। ये जो 1,90,000 मिला, मैंने पूरा का पूरा पैसा कॉस्ट्यूम डांस के लिए, कॉस्ट्यूम परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल्स ये पूरा परचेज कर लिया हमने, और हमने उसको सिलवा लिया पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम। एटलीस्ट हम सेटअप रेडी हो गया था हमारी टीम का। आर्टिस्ट कौन थे, परफॉर्मेंसेस हम लोग कर रहे थे, तो हमने सेटअप रेडी करा, रोज ऑफिस आना, परफॉर्मेंसेस करना। 7 महीने हो गए थे, 7 months, no opportunities. So when did that first break come? Once you formed your in the month of June. Okay. जहाँ मैंने बताया आपको 3 परफॉर्मेंसेस, मुझे बड़ी परफॉर्मेंस, छोटे परफॉर्मेंस वी आर डूइंग 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। और मैं एक और नाम बताना चाहता हूँ आपको, जो है मिस गीता पर्पल, जो बॉम्बे से बेस्ड है ना, जो मुंबई में रहती थी हमारी। उनको मैं प्यार से पहले स्टार्टिंग में जब मैं उससे मिला था, मेरी बात हुई थी, तो मैं उनको मैम बोलता था। तो उन्होंने बोला मैम मत बोलो, मुझे दी बताओ, क्योंकि मैम का रिश्ता अलग होता है और एक दी का रिश्ता अलग होता है। दीदी ने फिर हमारे को अपॉर्चुनिटीज दिलवाई बॉम्बे में, जो कि फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ टेस्ट बॉम्बे में मिली हमारे को। I would like to especially talk about your journey in the TV world. You've been featured on, India's Got Talent, Satyameva Jayate, so many, Dance India Dance, itne sare hai. So how did that break come? How did you get a chance there? See, when the first reality show came, I hope you know, it was very popular, Dance India Dance. Yes. और डांस का क्रेज होता है, वो और पॉपुलर हुआ डांस इंडिया डांस के बाद। और सबसे अच्छी बात थी कि उसमें एक और पर्सन थे जिन्होंने कमलेश पटेल नाम था, उन्होंने हिप हॉप किया था। तो मिथुन दास जब वहाँ पे एज ए ज्यूरी थे, उन्होंने जब उनका परफॉर्मेंस देखा था, तो उन्होंने मुझे सोचा था कि मैं इस समाज में जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सन है, उन सबको इस मंच पे लेकर आऊंगा, राइट। तो 2010 में जब डीएडी सीजन पूरा खत्म हुआ, उन्होंने एक स्पेशल एपिसोड रखा जिसका नाम रखा आशाएं। ओके। वहाँ पे हमने एक परफॉर्मेंस किया था डांस इंडिया डांस। But how did you get to know about it? I got the call from this because we were working at this time, na? Because we were working as I was associated in this organization. Okay. तो उस organization में कॉल आया, उसके साथ में जो मेरे 3-4 फ्रीलांस डांसर थे, हमने उनके साथ में परफॉर्मेंस किया था। फिर उसके बाद में स्टोरी खोल गई कि हम डांस इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें हमने अपना वीआर वर्क करा, और एक हुनरबाज रियलिटी शो आया था, उसमें हमने अपने वीआर वर्क करा। अभी साउथ के काफी सारे रियलिटी शोज हैं जिसमें हमने अपने वीआर वर्क परफॉर्मेंसेस किया। और अभी रिसेंटली आपको खुशी होने वाली है कि वी हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 11। Oh wow. And I'm a little curious to know about these reality shows. Like we hear so many things कि reality show में ऐसे होता है, वैसे होता है. It's not, I mean, it's not the best atmosphere to be in. तो ऐसा कुछ सच में ऐसा है, और they are very supportive to actual talent and just not TRPs? It's true that they need more TRPs. But the thing is that there are lots of people who also acknowledge the people who are doing the great things or the great things in the field of dancing, you can say, right? Like we have performed at least 2 episodes in entertainment के लिए कुछ भी करेगा in the finale.
राइट। तो हमने वहाँ पे 1 हफ्ते का टाइम स्पेंड करा था, प्रैक्टिस सेशन, ईच एंड एवरीथिंग, बट लॉट ऑफ पॉलिटिक्स वर देयर, यस ट्रू, बट द थिंग इज दे ट्रू, दे अप्रिशिएट द ट्रू टैलेंट। 2010-12 की बात में अगर करूँ तो उस टाइम पे भी सोशल मीडिया का फ्लुएंस इतना नहीं, बट आज जब 4 GB 5 GB in a day you are spending on the internet and phone calls, Instagram, तो आप तो एक हकीकत को नहीं छुपा सकते कि एक होता है ना कि किसी एक अभी आपने एक लड़का देखा होगा जो जो पत्थरों से मतलब वो विशल बजाते हैं वो और गाते हैं, काफी पॉपुलर होता है। वो वेरी ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, वेरी पुअर फैमिली, उनका घर पक्का नहीं है, बट नाउ ही इज ट्रैवलिंग टू दुबई। आपने बहुत सटली बोला, बट यू शुड बी एबल टू हैंडल द सिनारियो। जैसे आप बोले पॉलिटिक्स वगैरह भी होता है, बट यू शुड बी स्मार्ट एनफ व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मेरा टैलेंट है तो आप रहना है वहां पे, तो आप यू हैव टू लर्न टू बिकम लाइक वाटर। अल्टीमेटली आपका गोल है कि यू हैव टू परफॉर्म। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी फॉर बडिंग आर्टिस्ट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका टैलेंट है, बट आपको वो सिचुएशन में रहना भी आना चाहिए। यू शुड लर्न टू टैकल ऑल दीज सिचुएशंस। It's true. Actually क्या होता है, आपने पानी की बात करी ना, तो इसी तरीके से हम भी है। आप ये सोच सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में आप काफी सारी controversies हैं। The thing is this, while you are doing like there's a stage, right? And behind my stage there's a Lord Ganpati, but the organizer requested me for the Sufi performance, and we are doing Bharata Jholi Meri Yaad. See what will be the things. Do you think there are around 100 people are sitting while they are seeing the performance? So all the 100 people will not love. They will see कि यार ये performance यार नहीं, but the organization कह रहा है कि please आप करिए। Now I'd like to talk about the financial aspect, sir. आपने बोला it is there is a lot of survival and आप काफी सारे shows ऐसे ही करते थे without getting any reward in a financial term. But you have to respect the dancer by giving some sort of reward. You should reward me in some way for my effort, for my creativity, for my imagination. You know, I was taking your time and coming. तो आपको ऐसे कहीं बार फेस हुआ कई बार कि खुला हाथ नहीं है उनका? ऑलवेज होता है, आज नहीं है कल भी रहेगा। आपको बर्थडे ये चीज रहेगी हमेशा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आगे देखिए we are doing the corporate shows. While they are calling in and they are calling the dancers, they want to show that कि हमने different level performers बुलाया। जब तक वो कॉल नहीं करते, देखते नहीं हैं, उसके बाद तक उनके मन में ये रहता है कि they are calling the different level। मैं आपको ये बोलूँगा, अगर 100 का रेशियो है, around 25 people are similar, 75%, even 75% are as similar, they are calling the different level people to show the audience that डिफरेंटिबल पर्सन चेंज कि हमारे अंदर इतना रहम दिल है कि हमने इन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दी। ये आज भी है एक, बट बस इसीलिए वी आर फाइटिंग कि वी वांट टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द पीपल दैट आई वांट दैट व्हीलचेयर शुड नॉट बी द सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, इट शुड बी द सिंबल ऑफ एबिलिटी। तो आजकल ये इतना कॉमन नहीं है कि बच्चों को लेकर डांस प्रोग्राम के लिए, यू नो, सो डू यू थिंक दैट culture can come back? Everyone goes for concerts. आजकल तो stand-up comedy shows भी हो गए. So all that culture is there. But when it comes to classical dance or even dance dramas like what you are, creating, do you think that culture can come back, and how can we develop that interest in this generation? See, culture is not lost today. Culture is still here today. And आज मैं अगर कहता हूँ कि मैं अगर इस stand पे खड़ा हूँ, तो उसके पीछे जो है ना, ये मेरा भारत देश की संस्कृति का कल्चर है कि मैं मुस्लिम होने के बाद भी आज मैं भगवत गीता के बारे में पाठ पढ़ चुका हूँ, सरस्वती वंदना मुझे पूरी आती है, हनुमान चालीसा मुझे पूरा आता है, और गायत्री मंत्र मुझे पूरा आता है। मैं स्टेज पे ये सब चीजें पढ़ता हूँ। ये सब चीजें मुझे ये सिखाती है कि जो भारत का जो संस्कृत है, कल्चर है, ये कहीं ना कहीं मे बी ये थोड़ा धीमा हो जाता है, डाउन हो जाता है। लोग बाग इसको देखना पसंद नहीं करते, इस टाइप की कॉस्ट्यूम को देखते हैं तो कहते हैं कि आप बोर हो जाएंगे परफॉर्मेंस को देख के। ये ट्रू है इस सेंस में, बट द थिंग इज दिस कि आज आपने अगर आपसे 30 साल पहले आप जाइए तो बेल्वेट पैंट का टाइम हुआ था, फिर उसके बाद में आप नैरो जींस पहनते थे, तो वही पैंट जो आज से 30 साल पहले जो सब लोग पहना करते थे, जैसे कि, तो वो टाइम दोबारा आया।
well तो said. कुछ टाइम जो है ना सर्कुलेट होता है इस चीज को लेके. कल्चर जाएगा जरूर, पर आएगा भी जरूर. Very well said. So now I want to ask you something about personally yourself. कि what is your dance routine like? You know, आप कब practice करते हैं? आपके गुरु कौन है? आपका routine, general dance routine क्या है होता है? See, we are working in this line as a professional player, and it's an office. I'm sitting in an office, and in front of me there is a camera. Space where the performers do the performance in, and a small space I have a luggage room also where all the costumes are set in the room. So it's my daily routine. We come in the office every day, and 2 hours every day from 11 to 1 we are doing the practice, which is our traditional practice. Like when we start, we just start Ganesh Vandana performance over here, and while it's a kind of actually the thing is just the blessings of the God that. In a month we are doing the 4 to 5 performances, so we do not have the free time that we want to sit free. So we have lots of work of the practice, costume, props, and making. Sometimes we are doing the performance, the jewelry जो टूट जाती है उसको हम स्टिच करते हैं, बनवाते हैं, costumes हैं, क्या नए रीइनोवेट कर सकते हैं, क्या नई चीजें कर सकते हैं. तो हमारा डेली रूटीन ये है कि हम रोज ऑफिस आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 2 to 5 हम लोग करते हैं अपने बैचेस को जो सीखने के लिए आते हैं, जो हैंडीकैप बच्चे हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे. So basically first half of the day आप आपका खुद का प्रैक्टिस करते हैं या ग्रुप से करते हैं, and then second half of the day you're spreading your knowledge by teaching the children. Exactly. Okay. And so I said you mentioned कि आपने कोरियोग्राफर तो आपके ग्रुप में डेडिकेटेड है, but for you personally as a director or the person who's formed the group, जब आप प्रैक्टिस करते हैं for your shows and whatever productions you have, there must be mood swings you must be facing with your team members. तो आप वो कैसे हैंडल करते हैं? Because a lot of people, कई बार हमको खुद को ही फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये क्यों नहीं आ रहा है, and then those mood swings really disrupt the whole atmosphere. See, how I try to solve this problem, because वो मुझे होता है, मैं सच बताता हूँ. Basically मैं ज्यादा होता हूँ क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जब वो नहीं निकल के आता ना उसको, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता उसको, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप रात भर आपको पूरी कहानी आपने देखी बरा की, 4-5 स्टोरीज आपने पढ़ी, फिर यहाँ पे आके कोरियोग्राफी देखने को मिलती है दूसरी, तो वो कहीं ना कहीं पिंच करके थोड़ी सी फिर उसको चेंज करते हैं. तो कोरियोग्राफर्स कहता है कि यार भैया मैंने ये बनाया था यार, आप चेंज कर रहे हो उसको, एंड वी ऑल आर सिमिलर एज. सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे सिमिलर है, तो मेरे को क्योंकि एक इंसान जब मेहनत करता है उसकी मेहनत को आप चेंज करोगे तो वो एक्सप्रेशन बता देता है कि मैंने ये अच्छा कुछ करा है. जब आर्टिस्ट नाराज हो जाता है कि सर ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा दी, एक्चुअली मेरे रूम में एसी नहीं है, यहाँ पे एसी नहीं है हमारे पास, तो कभी क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, एसी नहीं है, तो गर्मी से थक जाते हैं आर्टिस्ट. तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से फटाफट से गए, 4-5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, 10-12 पिज्जा उठाया, फटाफट से लेकर उनको थोड़ा सा हैप्पी करा. हैप्पी होने के बाद टेक द रेस्ट ऑफ 1 आवर. उसके बाद थोड़ा शाम होती है, फिर हम 7 से 8 लगते हैं दोबारा से, जब प्रोडक्शन हमारा रेडी नहीं होता, थोड़ा लेट नाइट वर्क करते हैं, और फिर जो उसके बाद में निकल आता है ना, वो देखिए सो हैप्पी और वो एनर्जी भी आ जाती है और देखिए. Lovely, good tactic. Now sir, last question before we go into a one fun round. Very short में, मतलब 2 lines में, if you can just tell me where do you see yourself in 5 years, you and Bow together? मेरा एम यही है 5 साल में. बेसिकली मेरा एम तो कुछ भी नहीं है, अब बेसिकली मेरा एम यही था कि मैं कॉम्पिटिशन शुरू करूँ स्टार्टिंग में, और मेरे जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे सेटल हो, काम करें. जो मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनर है हरबीर राम का, वो यहीं पर ही बैठ के मशीनों के कॉस्ट्यूम को स्टिच कर पाते हैं आप, तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो बाहर भी जाएंगे तो एटलीस्ट एक कुछ काम कर पाएंगे, और जब वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उनके सामने प्रॉप्स बनते हैं, क्रिएटिविटी, तो अच्छा लगता है. 5 साल मेरा विजन यही रहेगा कि ये जो अभी मेरे पास में 50 से 60 बच्चे हैं, मेरी बड़ी सी अकेडमी हो जाए बच्चों के लिए, जहाँ पे पूरी एक्सेप्टेबल हो कि एक व्हीलचेयर यूजर भी आराम से अंदर आए, वॉशरूम में जा पाए, चला जाए, वो मेरी अपनी होनी चाहिए. मतलब व्हीलचेयर के ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉप के ऊपर करूंगा, तो शायद मैं उनको और अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा पाऊँ, कॉम्पिटिशन में लेके जा पाऊँ, जैसे कि अमेरिकन गॉट टैलेंट, जो मैं अभी तक नहीं गया हूँ, बट मेरा विजन है कि मैं वहाँ पे पहुंच पाऊँ, उनको प्रेजेंट कर पाऊँ. ये मेरा सपना है कि मैं अपनी कला को वहाँ तक ले जाऊँ. And I'm sure you'll do it also. You sound very resilient. And आपका planning भी काफी comprehensive है और एकदम directed है. So I'm sure it will happen. Now our last round is going to be a rapid fire round. What is your favorite dance item to perform? Item? What? So if you had to play a musical instrument, which one would it be? I would play guitar. Guitar, okay.
One most memorable dance performance. Rama, when I played the character of Rama in United Kingdom and Christian Canada. Okay, lovely. Are you super? But every time audience touch my feet, Oh wow. like divine force होता है ना, वो कहीं ना कहीं शायद उनको दिखा होगा हमारे अंदर. That's why. Okay. What's the one thing that you do before going on stage? Prayers. Okay. Very important. What is your comfort food? I would like to have the food, momos, chili potato, this kind of things. I would love to have it. But while I'm working, though, there's after the performance, I just go to the main person that who is the guest of the performance. Or Now tell me one person who has the most influence in your life till now. आपने तो बहुत सारे नाम लिए प्रोसेस में, but एक कोई होगा. can I say around 5 names? नहीं sir. One. One name, my wheelchair. Okay. Because my wheelchair, whatever I am today, because I have performed only on the wheelchair, so my wheelchair is my role of the character of my success. Beautiful. Yes, that's a very good answer. Now the last question is a little deep. It's one metaphor for the dance, for your dance. So it can be an object, it can be an emotion that you relate to your dance. Simple line, I will say that dance is my blood, because if there is no dance, there is no life. Thing related to dance, it feels me like I'm living in a heaven. That's beautiful. Okay, beautiful, beautifully said. So that comes to the end of our conversation, sir. Thank you so much for being so honest and introducing me to your team also, and speaking so freely and liberally and candidly on the whole show about everything that you have been through. Thank you so much for giving such a lovely opportunity where I can share my experience and my story with you. Anyone who is listening me, so please, we need your blessings. We need your care. Always, sir, and all the best for all your upcoming performance. You're doing a lovely job, and all the best to your team also. Thank you so much. Thank you. We are saying bye. I was struck by his honesty, his confidence, and his understanding of the business of things. Husnain sir is smart, focused, and unabating in his quest. We wish him and his team all the very best. I'm Chandini, and I'll be back soon with another creative mind under the spotlight. Until then, remember to spread those positive vibes.